1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 कोरिंथियंस 3 चैप्टर 7 वर्स से लेकर 4 चैप्टर 1 वर्स से 18 वर्स तक पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर 17 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन से लेकर 4 अध्याय के 1 वचन से 18 वचन तक, और फिर नीति वचन 16 अध्याय 17 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र लहू में अपने आप को छुपा लेते हैं और इन वचनों को जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि सच में कितना महान है तू, कि तूने अनंत जीवन हमारे अंदर, अविनाशी जीवन रखा है हमारे अंदर, जो कभी नहीं मरने वाला और अनंत काल का जीवन रखा है तूने हमारे अंदर। और ऐसा जीवन जिसके अंदर कोई सड़ाहट नहीं है, कोई डर नहीं है, धैर्य और सामर्थ्य भरा हुआ है। सब कुछ जो परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारे जीवन में दे दिया गया है विरासत के तौर पर। इस बात की तसल्ली तूने हमें दी है, इस बात का विश्वास हम में तूने बढ़ाया है। आज का वचन हम उस दिशा में बढ़ते जाए जिसमें हमको अनंत काल के जीवन के लाभ रहते हैं। पिता, हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं इन वचनों को हमारे जीवन के वो हिस्सों में फिट एंड फिक्स कर, ताकि हम तेरे व्यवस्थित रूप में हम चलना सीखे। नासरी यीशु के नाम से हमें व्यवस्थित बना, ऑर्डरलीनेस में ला, जैसा परमेश्वर चाहता है उस ऑर्डरलीनेस में लेकर आ पवित्र आत्मा। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम से, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 7 वर्स से पढ़ेंगे, फिर 4 चैप्टर के 1 वर्स से 18 वर्स तक पढ़ते जाएंगे। But if the ministration of death written and engraven in stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Amen. Thank you, Jesus. For if the ministration of condemnation be glory, much more doeth the ministration of righteousness exceed in glory. Hallelujah. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelled. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which a veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Chapter 4, Paul's
unwearied diligence and zeal in preaching his troubles for the same. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Amen. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then death worketh in us, but life in you. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sake, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय 7 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे. 4 अध्याय के 1 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे. BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन से आगे. यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी. क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी. और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा. क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा.
इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 4 अध्याय का 1 वचन से 18 वचन पढ़ेंगे। मिट्टी के पात्रों में धन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आमीन, हालेलुया। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। 7 वचन से आगे, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। हालेलुया। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। हालेलुया। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। 13 वचन से आगे, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। देखिए ये वचन बहुत ध्यान से देखिए। हम जो परिस्थिति से जाते हैं, जो सहते हैं, जो भी कारण से हमारा शरीर प्राण दुख की पीड़ाएं सहता है, सतावट की पीड़ाएं सहता है, यहाँ पर आपने ओपनली पढ़ा, उपाय नहीं है, ऐसा भी समय आ जाता है। ओके, हम बहुत तरह से मृत्यु के हाथ में खिलौना बन जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से जीवन उत्पन्न करने वाला आत्मा है। तो हमारे ये सारा क्लेश लिमिटेड टाइम तक चलता है। जैसे ही वो लिमिटेड टाइम ख़त्म होता है, हमारे लिए एक समय तैयार रखा है परमेश्वर ने, वो ये वाला है। ये आशा हमने कभी नहीं खोना है। जब हम टफ टाइम में से जाते हैं, जिसके अंदर से हमको उपाय नहीं पता है क्या करना है, उस समय में आपको ये ध्यान रखना है, हल्का सा रहता है वो क्लेश, उसको पल भर का हल्का सा क्लेश कहा गया है, और इसके बाद का समय हमको आशा देता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। कभी नहीं भूलना है, इसके बाद वाला समय आप एंजॉय करने वाले हैं। आमीन। इसके बाद वाला समय आप बहुत बड़ा आनंद परमेश्वर में करने वाले हैं। कभी ये आशा को आप खोना नहीं है। जब भी आप ऐसे समय से जा रहे होते जिसके अंदर आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, ये आगे का समय आपका हमेशा आशा बने रखना है अपने मन के अंदर। ओके, 18 वचन, और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अब जो आपको अनंत काल के जीवन में से महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न होकर आने वाला जो है, जो एक छोटा समय क्लेश का निकल जाएगा, तो आपको याद रखना है, वो अनंत काल लंबे समय आपके साथ सदा के लिए बनी रहने वाला ऐसा वो घटना, ऐसा वो समय, ऐसा वो अनुभव परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलने के लिए तैयारी के साथ रुकता है। आपने हियाव नहीं छोड़ना है। ओके, आपने वो क्लेश को सालों साल रहे, दिन ओ दिन रहे, महीनों महीनों, घंटों घंटों, कोई भी समय रहे, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अगर ये आया क्लेश तो इसके ड्यूरेशन, इसके लंबाई, समय के लंबाई को मत देखिए, इसको यही कहिए ये हल्का सा है और ये पल भर का है। यही आपका मुंह में यही शब्द होना चाहिए, ये पल भर का है और ये हल्का सा क्लेश है, और आने वाला जो है वो सदा के लिए बना रहने वाला अनंत महिमा उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण समय आपका तैयार हो रहा है इस क्लेश से बाहर निकलकर उसमें आप जाने के लिए। ओके, हमेशा ये कन्फेस कीजिए अपने मुंह से, क्योंकि ये ताकत है, ये शक्ति है, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर रिलीज होता है अब हम इस प्रकार से बोलने से। ओके, प्रभु यीशु मसीह आपको इस बारे में और ज़्यादा ज्ञान दे और अपने सारे क्लेश को आप पार कर पाए, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।